है गाइस, दिस इज रोनिजन बैक विद यू। तो आज अपन करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स की एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 8.1। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और आप लोगों को पहले वीडियो में पता चल चुका है कि आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरह से अपन जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं वो कवर कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने है स्क्रीन पे। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD intersected O. If BOC angle is 90 degree and angle BDC is 50 degree, then angle OAB, we need to find out this. So let's bring our parallelogram and name it A, B, C and D. And the intersection of both the diagonals is O. Pretty simple. Now, what we need to find is angle OAB. This one angle, this angle we need to find, and we are given with angle BOC is 90 degree, angle BOC this is 90 degree, and angle BDC is 50 degree. BDC, this one angle is 50 degree. Pretty simple. Now we all know that in parallelogram opposite sides are parallel, so side CD and AB are parallel, then angle ABD must be 50 due to alternate interior angle. Fine. Yeah, it's fine. Now, and angle BOC is 90 degree, so angle AOD will be 90 degree, angle AOB will be 90 degree, and in triangle, now in triangle AOB, sum of angle is 130 degree, 180 degree, sorry 130 not 180 degrees. Angle sum property of triangle, let's apply that. Angle OAB plus 90 degree plus 50 degree must be equal to 180 degree. Then our angle OAB is 40 degrees. I think it is pretty simple question for now. Let's move forward. Yeah, we are given with 3 angles in this question and we need to find out the fourth one. It's much easier, I think, than the first one, because here we need to apply is the angle sum property of quadrilateral, which says the sum of all the angles of quadrilateral is equal to 360 degree. ठीक है, तो 75 degrees plus 75 degrees plus 90 degrees, and let's suppose the fourth angle is x degrees. So this will give us, what will this give us? Here 150 plus 90, 240. 360 degrees minus 240 gives us 120. So our x is 120 degree. That means our fourth angle is 120 degree. Let's move on to next question. Diagonal of rectangle is inclined to one side of rectangle at 25 degree. The acute angle between the diagonals. Listen, this is a language based question. We need to find out its picture. We need to visualize this. So let's make a rectangle. First of all, it is a rectangle A, B, C and D. rectangle बन गया. Now क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल बनाना है, वो इंक्लाइन है एक साइड ऑफ रेक्टेंगल के 25 डिग्री पे. सी कोई भी एक वो बना लेते हैं. ये अपन ने डायगोनल BD बना लिया. साइड AB पे इसका एंगल बन रहा है 25 डिग्रीज, ये अपन मान लेते हैं. और दूसरा डायगोनल पे अपन ज्वाइन कर लेते हैं जो कि AC है, और ये पॉइंट बोल देते हैं O. द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स. अब ये वाला एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, ये अपन को निकालना है. अगर ये 25 डिग्रीज है तो ये 25 डिग्रीज होगा. अपन को पता है रेक्टेंगल में सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, पता है ये बात अपन को. तो ये वाला एंगल जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा 65 डिग्रीज. क्या हो जाएगा? 65 degrees. If this one is 65, this one is 25. Now this will be 65 again. Can I say that? Listen. Yeah, I can say that. Are you getting my point? No. Okay. Let's bring it on. This is 65. This will be 65. Okay. Now let's move on. This one. No, this one. This is 25. This is 25. Yeah, this is 65.
25 and this is 65 again. Now this will be diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. So this will be apna 25 again and this will be, sorry, not 65, this will be 25 and this will be 65 and this will be 65 because diagonals bisect each other. So OA and in rectangle diagonals are equal. So OA is equals to OB. What I am saying is OA is equals to OB. Yes, diagonals are, क्यों diagonal equal होते हैं मेरे, diagonals are equal and they bisect each other. आई बात समझ? देखो तो ये अपन को सारे एंगल्स मिल गए. अपन को क्या निकालना है, एक्यूट एंगल निकालना है जो कि डायगोनल्स के बीच में बन रहा है. एक्यूट एंगल कौन सा है, ये वाला 65 प्लस 65 130. रेक्टेंगल के ट्राइंगल के एंगल सम क्या होते हैं 180. तो 180 माइनस 130 50 डिग्रीज. देखो 180 डिग्री माइनस 65 इज इक्वल्स टू एक्यूट एंगल. Acute angle between the diagonal, that is it gives us 50 degrees. So option B is our correct answer. Let's move on to next one. ABCD is a rhombus such that ACB is 40 degree and then find out angle ADB. In rhombus the diagonals are perpendicular to each other. That's fine. Yeah. Let's bring our rhombus A, B, C, D. Yeah. Yep. Now this one is our center O and it is making 90 degree angle. And OD and OB are equal. OD and OB are equal because diagonals bisect in parallelogram. Rhombus is another form of parallelogram, the quadrilateral family. I can show you a diagram here. This one, a quadrilateral, trapezium, trapezoid, kite, then parallelogram to rhombus. This one you can see, and in one shot I have explained it more deeply to you guys. So let's bring on the diagram first. Now what we are given with is angle ACB. ACB, this one angle we are given this is 40 degrees and we need to find ADB. This one we need to find out that angle. This is 90 degree, so it is 50 and opposite sides are parallel, so this one is 50 degrees. Hence our answer by alternate interior angle. कैसे हुआ ये alternate interior angle के मदद से, तो अपना आंसर आ गया 50. बात खत्म, आगे बढ़ते हैं. अब this one is one of the most important question and one of the curious question which can open up your many concepts and revise many concepts. तो इसको देखते हैं और इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो एग्जाम करके कुछ आने वाले जो क्वेश्चंस है ना वो आसान लगेंगे. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को एकदम डीपली समझेंगे और अच्छे से समझेंगे. देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को. ये कह रहा है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसको अपन ने ज्वाइन किया है मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल. कोई क्वाड्रिलेटरल है PQRS. लेट्स ड्रॉ डायग्राम. Let's draw it. Let's say it is a quadrilateral PQR and S. Sorry. Sorry. This is a diagram PQRS. It is a quadrilateral and let's join its midpoint. अब क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं. Let's join them. These are their midpoints and we are joining them easily. Let's join them easy and let's name it a quadrilateral ABCD. Now what we are given with the quadrilateral form, the quadrilateral ABCD which is formed by joining the midpoints of quadrilateral PQRS. मतलब धीरे हिंदी में समझा देता हूँ. PQRS क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट्स अपन ने जब ज्वाइन किए तो अपन को मिला क्वाड्रिलेटरल ABCD. क्या मिला अपन को तब अपन को मिलता है क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब
इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की अगर अपन बात करें तो एबीसीडी जो दिया हुआ है वो बनता है अपना रेक्टेंगल। क्या बनता है? अपना रेक्टेंगल बनता है। अगर वो रेक्टेंगल बन रहा है तो पीक्यूआरएस कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल होगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगी, तो वो प्रॉपर्टी अपन को निकालनी है। ठीक है, अब अगर ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री एंगल होंगे सारे, ये बात अपन को ध्यान रख सकते हैं। AC और BD जो है वो अपने बराबर होंगे। क्या होंगे? AC और BD मस्ट बी इक्वल, ये अपने इक्वल होंगे। अब और क्या बात कर सकते हैं? अपन बात कर सकते हैं AB जो होगा वो होगा CD के बराबर, और AB CD के बराबर, और AD जो होगा वो BC के बराबर होगा। और अगर अपन देखें तो डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स जो होंगे ये एंगल कुछ नहीं बना रहे होंगे, है ना। अब अपन को बात करनी है, देखो PQRS क्या है? रेक्टेंगल। अगर PQRS रेक्टेंगल है तो मान लेते हैं अपन एक रेक्टेंगल बनाते हैं पहले, और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं, और फिर उस पर कमेंट करेंगे कि वो क्या मिल रहा है अपन को। रेक्टेंगल ये बनाया अपन ने, इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं और फिर ऑप्शंस को रिजेक्ट करेंगे। ये अपन ने ज्वाइन किए मिड पॉइंट्स। अब रेक्टेंगल जब बना तो अपन की चारों साइड इक्वल आएगी। ये बात किस किस को समझ में आती है? देखो मैं बताता हूँ। ये साइड जो है वो इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है इसी, और ये चार पोर्शन जो है वो आपस में बराबर है, और ये चार पोर्शन जो है वो आपस में बराबर है। पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये साइड चारों साइड सेम आएगी, तो ये अपन को चारों साइड इक्वल है, तो ये रोम्बस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रोम्बस मिल जाएगा। और ये जो रोम्बस के अगर अपन इसको ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर भी होंगे, 90 डिग्री एंगल भी बनाएंगे, स्ट्रेट लाइंस बनेगी तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये अपन को रोम्बस मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल PQRS होता तो अपन को रेक्टेंगल नहीं मिलता है, रोम्बस मिलता है। क्या मिलता है अपन को? रोम्बस मिलता है। तो पहला ऑप्शन अपन ने रिजेक्ट कर दिया बड़ी आसानी के साथ। अब अपन ने ये देखो, ये वाला फिगर देखो, इसमें अपन ने लगभग PQRS को अपन ने एक पैरेललोग्राम ही बनाया। अब पैरेललोग्राम है अगर, तो रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल बन नहीं सकता पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये एंगल्स जो है वो 90 डिग्री नहीं हो पाएंगे पैरेललोग्राम बनेगा तो। और अपन साइड लेंथ जो है वो इक्वल कह नहीं सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। ये वाली कंडीशन पैरेललोग्राम में फेवर नहीं होगी, तो पैरेललोग्राम नहीं होगा। साइड लेंथ अपन पे कमेंट नहीं कर सकते वगैरह, इसलिए। अब डायगोनल्स अगर इक्वल है PQRS के, मान लो ये डायगोनल्स बनाए अपन ने, डायगोनल्स, लेट्स ड्रॉ द डायगोनल। डायगोनल इक्वल है, डायगोनल इक्वल होते ही अपने के पास ऑप्शन आ जाते हैं, रेक्टेंगल होगा, या फिर अगर पैरेललोग्राम है तो वो रेक्टेंगल होगा, या अपने पास होगा स्क्वायर। डायगोनल इक्वल होते ही ये दो चीजें अपन को समझ में आती है डायगोनल। और डायगोनल परपेंडिकुलर है तो रोम्बस होने के चांस होते हैं अगर वो पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल इक्वल है मान लेते हैं अपन, डायगोनल ऑप्शन डी पे देखते हैं पहले। डायगोनल इक्वल है, क्वाड्रिलेटरल है PQRS, न कि कोई वो पैरेललोग्राम में तो कुछ नहीं दिया। डायगोनल इक्वल होने से अपन को कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? मेरे को नहीं लगता कुछ मिलेगा। अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री एंगल है, बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, तो अपन को इधर बेनिफिट मिलता है कि ये एंगल जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेंगे, छोटे छोटे क्वाड्रिलेटरल जो होंगे, और ये सारे एंगल्स जो देंगे फिर वो रेक्टेंगल बना लेगा। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है ना, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, इक्वल में क्या आपको समझ में आया कि नहीं होगा? और परपेंडिकुलर है तो कैसे हो रहा है? ऑप्शन सी, डायगोनल्स ऑफ PQRS ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये थोड़ा परपेंडिकुलर हो गए ये लोग, है ना, पर थोड़ा नहीं, पूरा परपेंडिकुलर हो चुके हैं। अगर ये परपेंडिकुलर हो गए हैं तो ये सारे एंगल्स 90 90 90 बन रहे हैं, इसलिए रेक्टेंगल बन रहा है। तो डायगोनल्स जब भी अपन के PQRS के परपेंडिकुलर होंगे तो ये अपना हो जाएगा। और ये पूरे चारों ऑप्शन अपन ने डीपली देखे हैं, तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि क्या कैसे करना है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के अपन को मिलेंगे। देखो जैसे कि ये वाला है, if the quadrilateral formed by joining the midpoints of side of quadrilateral PQRS, अगर वो रोम्बस है तो क्या था? अपन ने अभी रोम्बस के लिए अभी अपन ने पता किया कि रेक्टेंगल होता है अगर, तो रेक्टेंगल है तो अपन को क्या मिल रहा था? वो मिल रहा था रोम्बस मिल रहा था, या फिर रेक्टेंगल में रोम्बस मिला था। रेक्टेंगल में कैसे? डायगोनल्स इक्वल थे, तो इधर रेक्टेंगल नहीं दिया हुआ लेकिन इधर डायगोनल्स इक्वल दिए, तो डायगोनल्स इक्वल है तो अपन को वो मिल जाएगा रेक्टेंगल।
आई बात समझ? कैसे डायगोनल्स इक्वल में अपन ने डायगोनल जब इक्वल किए थे इधर तब अपन ने रिजेक्ट किया था कि रेक्टेंगल नहीं होगा, और जब डायगोनल्स इक्वल है तो रोम्बस जैसा कुछ मिलेगा। वो अपन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या मिलेगा, लेकिन इधर डायगोनल्स इक्वल में, क्योंकि ये रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी, उससे अगर अपन देखें तो ठीक है, समझ में आया होगा। अब एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है और एंगल्स निकाल लेते हैं। पहले तो देखो, सबसे पहले 3:7 ये दिया हुआ है, फिर अपन को डिफाइन करना है कि कौन सी चीज क्या है। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स। 3x बोल देता हूं मैं एक एंगल, 7x प्लस 6x प्लस 4x गिव्स मी 360 डिग्रीज। क्या हो जाएगा, क्या देगा मेरे को ये 360 डिग्री देगा सम। अगर ये 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री क्यों देगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, प्रीटी सिंपल। और ये 20x मेरा आया 360 डिग्री, x आता है मेरा 18 डिग्रीज। तो अब एंगल A मेरा आता है 48 डिग्रीज, एंगल B, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एक साथ लिख देता हूं, सारे सब लिख लेते हैं। एंगल B मेरा आता है 72 डिग्रीज, 36, 40, ओह सॉरी ये 54 होगा, माय फॉल्ट, ये 54 डिग्रीज। एंगल C अपन को मिल जाएगा 108 डिग्रीज एंड एंगल B मिल जाएगा अपन को 126 डिग्री। अब क्या कुछ नोटिस हो रहा है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, और लगभग अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब सेम एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है। अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल हो सकती है। देखो कुछ इस तरह से देखा जाए, A B C D, A अपना 54 है, B अपना 126 है, ये अपना है 108, ये है अपना 72। तो क्या इन दोनों का सम, तो ये लाइन पैरेलल हो सकती है, ये दोनों लाइन सम याद है लीनियर पेयर वाली, ये जब लाइन तो पैरेलल होती थी ट्रांसवर्सल, तो ये अब इन एंगल्स का सम क्या होता था, 180 डिग्री होता था। लीनियर पेयर सॉर्ट ऑफ या एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री, वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो थी ट्राइंगल्स में पड़ी थी, सो दैट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर अपन को कोई भी दो एक पेयर पैरेलल मिलता है तो वो बनता है अपना ट्रेपेजियम, और किसी भी चीज पर अपन कमेंट नहीं कर सकते। काइट के बारे में अपन कमेंट करते, काइट एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके डायगोनल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, काइट वो होता है। तो काइट पे अपन ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। सो आया होगा समझ में। अब दिस वन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B A B ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, BC का Q पे, CD का R पे, DA का S पे। देखो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल बाइसेक्टर ऐसे निकला, इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसे, इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसे, और इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसे। तो ये अपन का एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो A और B का अपन का पॉइंट मिलता है अपन को P, B और C का मिलता है Q, PQ, C और D का मिलता है R, और ये मिलता है अपन को S। क्या, PQRS, ठीक है, ये अपन को मिला। अब ये अब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है PQR ना। मेरे को वो बताओ, S एंगल, ये वाला एंगल S एंगल, एक सेकंड खाओ ना, झोल ना हो जाए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये एंगल बाइसेक्टर है, इन दोनों के हाफ है, ये इन दोनों के हाफ है। सो दिस एंगल, व्हाट, दिस एंगल, और वी कैन से दिस वन एंगल एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये एस एंगल के अपोजिट है एंगल। एस एंगल क्या है, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल डी। ये है, मानते हैं मेरी बात, चलो सब मान लेंगे ये वाली बात। ये वाला एंगल इतना है तो ये वाला एंगल भी इतना ही होगा,
होगा नहीं होगा? हाफ ऑफ एंगल डी, हाफ ऑफ एंगल ए। अब क्यू की बात करते हैं अपन। क्यू क्या होगा? क्यू को अपन लिख लेंगे, ये है अपना एंगल एस, एंगल क्यू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी माइनस हाफ ऑफ एंगल बी। ये अब इन दोनों का ऐड करते हैं, एंगल एस प्लस एंगल क्यू, ये क्या आता है 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस ए एंगल डी होगा, है ना? पूरे क्वाड्रिलेटरल, उसका सम क्या होता है 360 डिग्री, उसका हाफ कर दिया तो 180 डिग्री। तो एंगल एस प्लस एंगल वो आता है, एंगल क्यू आता है, इन दोनों एंगल्स का सम मेरे को मिलता है 180 डिग्री। सिमिलरली पी और आर का सम भी मेरे को क्या मिलेगा 180 डिग्री, यानी अपोजिट एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री सम 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल whose opposite angles are supplementary. Option D is a correct answer. Now let's move on to next question. And our next question is A, B, P and C, Q, D are two parallel lines, then bisector of this form what? So let's find out. A, B, P, now C, Q, D पैरेलल है। अब अपन को निकालना है ए पी क्यू, बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, अब 90 डिग्री एंगल कैसे होंगे? ये सारे रेक्टेंगल बनेगा ये, तो 90 डिग्री एंगल प्रूव कर दूंगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा ना। आसान है बड़ा कि ये 90 क्यों होंगे। अब देखो एंगल ए पी बी, angle APQ, this one angle must be equal to PQD। लिख लेता हूं मैं, angle APQ should be equal to angle PQD and angle BPQ equals to angle PQC। opposite angles equal है। अब ये देखो, इधर देखो, ये वाला एंगल BPQ प्लस एंगल DPQD, इन दोनों एंगल्स का सम एंगल BPQ प्लस एंगल PQD मस्ट बी 180 डिग्री। अब ये वाला आधा है इसका और ये वाला आधा है एंगल PBQ, और इन दोनों का आधा आधा है, तो इन दोनों का हाफ करूंगा तो 90 डिग्री। ट्राइंगल का सम अगर मैं बात करूं, ये R बोल देते हैं, ये S बोल देते हैं, तो ट्राइंगल PRQ में देखो, आप मैं लिख कम रहा हूं, मैं समझा जा रहा हूं, तो मेरे से कॉन्टेक्ट रखना अगर, और इधर मार्क पॉइंटर को देखते रहना, ठीक है? तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, समझ में आएगा। फिर लिखने का काम आप लोग खुद अपने आप हिसाब से कर सकते हो। ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, वो सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है वो ट्रिक समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेन चीज क्या है अपने पास कंसेप्ट हैंडल करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अब देखो ये बात अपन को समझ में आएगी, इन दोनों का हाफ कर दूंगा तो ये सम हो जाएगा 90 डिग्री, और 180 डिग्री होता है सम, तो ये एंगल अपने पास आ जाएंगे 90 और 90 सिमिलरली है, दोनों 90 आ गए। अब इधर बात करते हैं कि ये वाले एंगल जो होंगे वो 90 कैसे बनेंगे। APB स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, अब ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, तो फिर से उसी कंसेप्ट से ये हाफ होगा, इसका हाफ प्लस इसका हाफ 90 डिग्री दे देगा सम, दे देगा नहीं दे देगा, तो ये क्या मिल जाएगा अपन को, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। अब स्क्वायर को रिजेक्ट कैसे करेंगे, साइड्स की लेंथ इसमें क्या होगा, डायगोनल्स जो हो जाएंगे ना वो इक्वल बन जाएंगे। तो अब देखो PQ और SR परपेंडिकुलर है या नहीं है ये अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ये एंगल इक्वल होंगे, ये वाले एंगल SPQ और एंगल RPQ, अगर ये इक्वल आप प्रूव कर देते हो किसी कंडीशन लगा के, वैसे वो होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अपन को कुछ डेटा वगैरह दिया नहीं हुआ है, सिंपल अपन को बोला है कि लाइंस पैरेलल है, तो सिंपल अगर अपन को बोला जाता है कि लाइंस पैरेलल हैं तो ज्यादा मशक्कत नहीं है, सिंपली रेक्टेंगल बोलेंगे। अगर कुछ और एक और कंडीशन दी होती है और फिर वो इक्वल प्रूफ हो रहे होते तो ये अपन के स्क्वायर हो जाता, 45 डिग्री होते हैं फिर वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस के अगर अपन मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो अभी अपन ने देखा था रोम्बस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं उसके, तो रेक्टेंगल मिल रहा था अपन को परपेंडिकुलर में, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के, तो ये वाला क्वेश्चन था इसे, तो रोम्बस था, रेक्टेंगल था सॉरी। सो रिपीट हुआ है, उल्टे तरीके से पूछा है, रोम्बस दिया है, उधर एक क्वाड्रिलेटरल दिया था, इधर एक रोम्बस पूछा है, बात वही है, कंसेप्ट वही है। नाउ
D and E are the midpoints of sides of triangle AB and AC. O is a point respectively. Now let me make the diagram ताकि आप लोगों को समझ में आए. ट्राइंगल ABC है, मिड पॉइंट से AB और AC के DE, ठीक है. O कोई भी पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है BC पे. O को अपन ने ज्वाइन किया है A के साथ, और PQ जो है वो मिड पॉइंट्स है OB और OC के. अब अपन को बताना है कि DEQP, ये जो अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्या है. अब देखो, मैं पहली बार में बोल दूंगा कि पैरेललोग्राम है आप लोगों को, तो आप बोलोगे भैया कैसे. अब देखो, अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, लास्ट थ्योरम, सेकंड लास्ट थ्योरम, कि line joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side. यानी DE is parallel to PQ, यानी BC के पैरेलल है तो PQ के भी पैरेलल है वो. तो ये एरो में बना दिया. अब BC को मैंने ज्वाइन किया है, BC को मैंने डिवाइड किया है O पॉइंट से, ठीक है. अब OP और BP इक्वल है, OP is equals to BP and OQ is equals to QC. तो और अपन की क्या कहते हैं, BC लाइन को मैं लिख सकता हूं BP प्लस PO प्लस OQ प्लस QC. BP को मैं लिख सकता हूं आपका OP, तो 2 टाइम्स OP प्लस QC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स OQ. ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स OP प्लस OQ क्या है, PQ, 2 टाइम्स PQ है. BC अपनी क्या है, BC जो है 2 टाइम्स PQ है. PQ क्या आ रही है मेरी, हाफ टाइम्स BC. अब जब वो थ्योरम जो मैंने बोली, उस थ्योरम के स्टेटमेंट से मैं ये भी बोलता हूं कि DE इज हाफ टाइम्स ऑफ BC, यानी साइड पैरेलल है और इक्वल है. यानी ये क्या है, सरासर पैरेललोग्राम है. क्या है, पैरेललोग्राम है. सिंपल. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. एंड स्क्वायर चाहिए अगर अपन को, क्या चाहिए अपन को, स्क्वायर चाहिए. देखो, जब साइड्स इक्वल थी तब अपन को मिल रहा था रोम्बस, और जब साइड्स परपेंडिकुलर थी तब अपन को मिल रहा था रेक्टेंगल. अपन को पता है कि स्क्वायर कैसे बनता है, रेक्टेंगल प्लस रोम्बस, यानी परपेंडिकुलर और इक्वल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. देन नेक्स्ट वन इज दिस. ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है. पहला ही वाला जो पहला सेकंड क्वेश्चन था वो इसी टाइप का था, तो ये बड़ा आसान रहेगा आप लोगों के लिए. देखो, पैरेललोग्राम बनाया, ABCD AC और BD, ठीक है, AC और BD. तो DAC मेरे को दिया हुआ है 32 डिग्रीज, और ये पॉइंट O बोल देता हूं मैं. AOB मेरे को दिया हुआ है 70 डिग्रीज. क्या दिया हुआ है, 72 डिग्रीज. सिंपल. नाउ 32, तो ये भी अपना 32. हिसाब क्लियर. ये 70 डिग्री निकालना क्या है, DBC, दिस वन एंगल वी नीड टू फाइंड. ये 70, तो ये 110. सो 110 प्लस 32 142. तो आंसर आता है C, 38 डिग्रीज. 180 माइनस 142 डिग्रीज, दैट इज 38 डिग्रीज. बड़ा ही आसान था. सिंपल. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. नॉट ट्रू फॉर पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम नहीं है तो इसमें क्या ट्रू नहीं होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ट्रू. Opposite angles are equal, that is also true. Diagonals bisect each other, that is true. Opposite angles are bisected by diagonals, that is false. तो करेक्ट आंसर है अपने पास C, जो कि false है. नॉट ट्रू पूछा है, क्योंकि क्या पूछा है, नॉट ट्रू. तो नॉट का ध्यान रखना है, गड़बड़ हो जाती है. अब आता है अपने पास ये वाला क्वेश्चन. ओके, थैंक यू अगेन. तो लास्ट, दिस इज द लास्ट वन. D and E are the midpoints of, okay, that simple, that's simple. Additional information क्या चाहिए, ये वाला आसान है, मैं समझा देता हूँ. A B C D E. अभी रुको, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड डायग्राम बना लूं, फिर आप लोगों को बताता हूँ. ठीक है, दिस डायग्राम इज रेडी नाउ. अभी बोल रहा है D और E जो है वो मिड पॉइंट से साइड AB और AC के
ट्राइंगल, और डीई प्रोड्यूस किया है अपन ने एफ तक, और अपन को प्रूव करना है कि सी एफ इज इक्वल्स टू एडी और पैरेलल भी है। तो अपन को क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। देखो अपन को ये पता है कि डीई पैरेलल होगा बीसी के, और डीई जो होगा वो हाफ टाइम्स होगा बीसी के, ये अपन को पता है, ठीक है। अब ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है ना, और मिड पॉइंट है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब अपन को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे मैं प्रूफ कर सकूं कि ट्राइंगल डी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ सी ई। ये अपन इसको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो अपन को ये सब पैरेलल वगैरह सारी चीजें अपने आप प्रूफ हो जाएगी ना, क्योंकि एंगल ए बी इक्वल हो जाएगा तो पैरेलल भी हो जाएगा। पैरेलल का अगर कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को तो, है ना। अब अपन बात करते हैं, देखो अपन के पास क्या है गिवन है, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो एस ए एस लगा सकते हैं या ए लगा सकते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी में अपन कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो एस ए एस लगाते हैं। तो एस ए एस के लिए मेरे को चाहिए साइड एंगल में साइड ये रही, एंगल ये रहा, एक और साइड ई एफ और डी को इक्वल करना है, यानी सी वाली जो कंडीशन है ये अगर अपन को गिवन है, ये वाली कंडीशन अपन को गिवन है, तो अपना आंसर हो जाएगा, पैरेलल प्रूफ कर देंगे अपन बड़ी आसानी से। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप वहां पे स्क्रीनशॉट लेके या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां पे सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। टेलीग्राम को आपको इंस्टॉल कैसे करना है मैं सिंपली बता देता हूँ। कोई भी से भी टेलीग्राम ऐप सबसे पहले एंड्रॉइड आईओएस दोनों में है, तो इंस्टॉल कर लेना, और फिर ये जो लिंक दिख रहा है प्यारा सा छोटा सा, इस लिंक को आप कोई से भी आपके वेब ब्राउजर में टाइप करोगे तो सीधे आप हमारे ग्रुप के पेज पे आ जाओगे, और फिर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आपके सब डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे बड़ी आसानी से। तो अगर आप लोगों को इतना कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। अभी के लिए मैं चलता हूँ, टाटा बाय सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।